Okay, we'll wait for 2 or 3 minutes, then we'll start.
Okay, let's start now. All of you are there? Yes, Okay. sir. So what we have seen in our previous lectures, so we have seen three concepts. Okay, that is first of all, what is the dynamic binding, and then after we have also seen the polymorphism on objects. Okay, in polymorphism and dynamic binding, we have seen the upcasting and downcasting concept also. Okay, we have seen all these things, and some of the students are not there in the lecture. Okay, and again, as के lecture में भी कम है, पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं students, don't know. Okay, but they have to present. Okay, now it's sure. For today's lecture, I have decided 3 points from your syllabus. First point is construct calling during inheritance. Okay, first of all, we will see the constructor calling during inheritance. Okay, so what my concern is how to call the constructor and how it's done in superclass and subclass concept. That is inheritance. Okay, so base class, derived class concepts. How to call the constructor? This is the topic of your syllabus. Okay, so let us see from the example now. Okay, so because we haven't seen the examples from many times. Okay, so okay, my screen is visible to all. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, I'm doing nothing, just creating the class that is base. Okay, and then after in my base class, I have one constructor that is base constructor. Okay, in which I'm just system.out.println. I'm printing on the base is calling. Okay, that is system. This one is the constructor of my base class. Constructor name and class name both are same. Okay. Then after I'm creating the class derived, which is the subclass of base class. So I have to write extends base here, in which I'm again making a constructor for a derived class. Okay, in which I'm printing system.out.println derived is column. Okay, is it clear now? I have created two classes, base and derived. In base class, I have one constructor that is base, in which I am printing only base is calling, and then after derived class extending the base class. That's why the base class is the super class and derived class is the subclass. Okay, in which I am creating the derived constructor, which denotes the derived is calling. Okay, now I'm creating a class XYZ, okay, in which I have a main method public static void main string x. Is it clear now? Okay, in my main method, I'm just create a object of derived class. Okay, that is derived d1 equal to new derived. Okay. Now what should be the output of this program? Okay, xyz.java करके मैं program save करा. What should be the output of this program? Can anyone tell me what is the output of this program? What should be Derived is calling. Sir. derived? Derive is calling.
ओके, युक्ति ने बताया डिराइव इज कॉलिंग, यश ने बताया डिराइव इज क्लास कॉलिंग। ओके, और कोई? सर डिराइव क्लास कॉलिंग थोड़ा करिएगा, So, डिराइव क्लास दोनों साइड लिखा है सर, एक साइड बेस क्लास नहीं आएगा? यहाँ पे मैं डायरेक्टली डिराइव को ही कॉल ऐसे कर रहा हूँ तो क्या आएगा मेरा क्वेश्चन? डिराइव इज कॉलिंग। Derived is calling, sir. चलो रन करके ही देखते हैं। CMD ई ड्राइव में जावा के अंदर मेरे प्रोग्राम से जावा सी XYZ नाम रखा हुआ मैंने, xyz.java। ओके, कंपाइल हो गया, अभी मैं रन कर रहा हूँ जावा XYZ। ओके, तो आंसर इज base is calling and derived is calling. Okay, so I want to show you this thing only. Okay, here I am creating the object of only derived class. Okay, so Yes, the output जैसे आप लोगों ने बताया derived is calling should be output. Okay, but here the output is not only derived is calling, the output is you are saying here base is calling and derived is calling. Why? Because एक्सटेंड दिया है इसलिए बेस yes, क्लास। derived class is the subclass of base class. So here we can say that if the constructor of derived class is called, then automatically base class constructor is called. Okay, automatically ये base class का constructor call होगा, हमें कोई भी कुछ चीज लिखने की जरूरत नहीं। Is it clear now? Complete? sir. इजी है ना? है ना? डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट बनाया है, फिर भी यहाँ पे बेस क्लास क्यों क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि डिराइव्ड इज द सब क्लास ऑफ बेस क्लास, है ना? सो हम ऐसा सेंटेंस बोल सकते हैं कि whenever derived constructor is called, then the base constructor is or you can say base class constructor is automatically called. Okay, so this one is the Sir. funda of yes. સર આમાં તો આપણે ખાલી સબ ક્લાસ જ કોલ કર્યો છે ને, તો સર સુપર ક્લાસ નો આઉટપુટ કેમનું આવે સર? Because it extends the super class. હા સર, Subclass પણ है ना? સુપર ક્લાસ માંથી સબ ક્લાસ થયો છે। Okay. Just another example. I am taking a method void display here. Okay, void display method. Okay, in which I am just printing system.out.println. Okay, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बेस, सेम फंक्शन में यहाँ पे बना रहा हूँ डिराइव के अंदर। ओके, सेम फंक्शन है, बट यहाँ पे प्रिंट में कर रहा हूँ ओनली डिराइव। ओके, अभी मैं डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, आउटपुट क्या आएगा? तो वो दोनों आएगा, बेस और डिराइव। ओनली डिराइव्ड आएगा ना? फंक्शन ओवरराइड, यही तो देखो, यही समझ है। फंक्शन ओवरराइडिंग में कंसेप्ट क्या है कि अगर सेम फंक्शन नेम रिपीट हो रहा है तो ओनली डिराइव्ड क्लास का जो होगा वही कॉल होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट बनाया है इसलिए तो डिराइव्ड क्लास का फंक्शन कॉल होगा। अभी कंस्ट्रक्टर में आपको क्या याद रखना है कि कंस्ट्रक्टर में आप अगर सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उस टाइम पे सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर भी कॉल होगा, दोनों कंस्ट्रक्टर कॉल होते हैं। Okay, because it is the derived is the subclass of the base class, that's why. Is it clear now? Yes sir. Okay, this is the first program of this default constructor का use किया है यहाँ पे, देखो default constructor। Okay, now for parameterized constructor. Okay, so here is the program of parameterized constructor, like देखो यहाँ पे एक बेस क्लास लिया हुआ है, उसमें एक वैल्यू दी है x एंड यहाँ पे एक इंटीजर लिया हुआ है, तो मैं अपने हिसाब से ही करवाता हूँ, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे।
ओके यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली बेस करके क्लास ले रहा हूँ। ओके, बेस करके क्लास लिया। यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर यूज कर रहा हूँ इन विच आई हैव अ वेरिएबल ए। ओके, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल x भी ले रहा हूँ। ओके, here in constructor parameterized constructor I have variable a. Okay, in which in the constructor I am just telling it that x equal to a. Okay, that means this one x equal to a है मेरा। Now I am creating a class derived which is the subclass of base class, that's why extends base, okay, in which I am creating a constructor with two variables int a and b, where x equal to a and y equal to b, and यहाँ पे मैं y वेरिएबल दे रहा हूँ। ओके, और सेम कंस्ट्रक्टर के अंदर में system.out.println x एंड y को प्रिंट करवा रहा है। x इक्वल टू प्लस x प्लस y इक्वल टू प्लस। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सब लोग? क्या किया मैंने, देखो अभी क्या चेंज हो रहा है, पहले मैं कंपाइल करूंगा, देन आफ्टर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या चेंज करना है। मैंने क्या किया, बेस क्लास एक वेरिएबल लिया है a, x इक्वल टू a ले लिया, यहाँ पे दो वेरिएबल a एंड b लिए, x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b, यहाँ पे b c भी ले सकते हो, कोई नो इश्यूज। ओके, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन भी मैं इसके साथ ही कर रहा हूँ, कोई अलग से फंक्शन वगैरह नहीं दे रहा हूँ, इसके साथ ही मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ। ओके, मेन फंक्शन अभी ले रहा हूँ मैं, इंट मेन फंक्शन के अंदर, सॉरी सी प्लस प्लस याद आ गया, यहाँ पे एक क्लास बनाना पड़ेगा, क्लास def, okay, in which I have public static void main string args। ओके, अभी मेन फंक्शन के अंदर में डिराइव्ड क्लास बनाता हूँ, डिराइव d1 इक्वल टू नी डिराइव। ओके, चल आउटपुट क्या आएगा तो बताएगा मुझे। न्यू डिराइव, यहाँ पे वेरिएबल भी ले लेता हूँ, चलो 5 10, आउटपुट क्या आएगा। सर x की वैल्यू 2 बार प्रिंट होगी और y की 1 बार। याद करा लो मैंने सर। ओके, so guys, yes, so we do. સર x ની વેલ્યુ 2 વખત પ્રિન્ટ થશે અને y ની 1 વખત। x ની વેલ્યુ 2 એટલે x ઇક્વલ ટુ 5 થશે અને y ઇક્વલ ટુ 10 થશે। હા, યસ સર। ઓકે, વેઇટ।
Okay, what should be the output of this program? Yours has told that x की वैल्यू लो और प्रिंट होगी ऐसा बताया. ओके चलो कंपाइल करके देखते हैं. बहुत सारी मिस्टेक्स लग रही है इसमें. फर्स्ट ऑफ ऑल ये थिंग होगी. पहले तो हम मिस्टेक्स सॉल्व करते हैं. ओके कंपाइल कर रहा हूँ. देखो यहाँ पे आई एरर 13 कंस्ट्रक्टर बेस्ड इन क्लास बेस कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन. ओके देन एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट. मतलब आर्गुमेंट में कुछ इश्यूज है. अभी देखो यहाँ पे x इक्वल टू मैंने क्या लिया a लिया. बट x की वैल्यू ऑलरेडी x इज गिवन हियर. x इक्वल टू a ऑफ बेस क्लास के पैरामीटर में मैंने ऑलरेडी दिया हुआ. तो ऐसा कभी भी होता है तो मुझे ये वैल्यू x की जो ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू मुझे सुपर क्लास को भी देनी है. यहाँ पे भी मुझे ये वैल्यू देनी पड़ेगी. यहाँ पे x क्योंकि वो x कहाँ पे x तो मैंने बेस क्लास में ही यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है ना. डिराइव क्लास में तो ओनली y है. तो मुझे यहाँ पे कुछ बताना पड़ेगा कि ये सुपर क्लास के वेरिएबल से वैल्यू मुझे लेनी है ऐसा कुछ. तो उसके लिए जो होता है सुपर कीवर्ड का यूज होता है. किसका यूज होता है? सुपर कीवर्ड का. तो आप ऐसा डायरेक्टली लिख सकते हो सुपर इन ब्रैकेट एक्स की जगह पे आप यहाँ पे लिख सकते हो ए. ओके क्योंकि सुपर ऑफ ए. ओके यहाँ पे सुपर कीवर्ड का यूज करके मैं क्या लिखूंगा सिंपली. यहाँ पे मुझे क्या लिखना है? सुपर एंड दिस वैल्यू इज कम्स फ्रॉम. Okay, so I have to write like this. Okay, now just try to compile it again. Okay, it is compiled. Is there any doubt now? GHI. The output is x equal to 5 and y equal to 10. What the values we have provided here? The output will be this. Is it clear now? Is it clear? સર પેલામાં તો અંડરસ્કોર એ લખ્યું હતું ને ક્રોમ. અંડરસ્કોર x છે એટલે એ લોકો અલગ એ લોકોએ શું કર્યું? અંડરસ્કોર x વેરિયેબલ જ એવું લીધું. અહીંયા આપણે કયો એ વેરિયેબલ લીધો, આ લોકો અંડરસ્કોર x લીધો એમ. એટલે વાયમાં મેં બી કીધું ને સર મારી એવું રીતે છે. બનાવો એમાં. હા તો એ તો અંડરસ્કોર y આખો વેરિયેબલ જ એવું લીધો. આપણે અલગ લીધું. a અને b લીધા છે આપણે. ઓકે અહીંયા સર. a અને અહીંયા a અને b લીધા એમ. વેરિયેબલ તો કઈ બી લઈ શકો ને તમે. યસ સર. એટલે આ સુપર કીવર્ડનો યુઝ શું છે જો. If we want to call parameterized constructor of base class, then we can call it using super. The point to note is base class constructor call must be the first line in derived class constructor. मतलब derived class के constructor में आप लिखते हो तो उसकी first line होनी चाहिए. ये एक रूल है. ओके तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया तो उसकी फर्स्ट लाइन में हमने भी जो बनाया डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर तो उसकी फर्स्ट लाइन में ही मैंने लिख दिया. तो ये बेसिक रूल है कि ऐसा मुझे करना पड़ेगा तभी वो वही वैल्यू देगा. ओके सपोज यहाँ पे अभी बेस क्लास के x की वैल्यू प्रिंट करवाओ तो क्या आउटपुट आएगा? चलो मेन फंक्शन के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में कर रहा हूँ. प्रिंट करवा रहा हूँ बेस क्लास का ऑब्जेक्ट पहले बनाना पड़ेगा. बेस p1 इक्वल टू न्यू बेस. ओके अब b1 का मैं क्या करता हूँ? b1 डॉट x की वैल्यू प्रिंट करवा रहा है. सर एलएन आएगा. प्रिंट एलएन. यहाँ पर यहाँ पे एक्चुअल आर्गुमेंट है. यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया हुआ है ना तो इसलिए ये नहीं होगा. बट यहाँ तक क्लियर हो अभी. तो ये सेकंड एग्जांपल था कंस्ट्रक्टर कॉलिंग वाला एग्जांपल. हम क्या कर रहे हैं? कंस्ट्रक्टर कॉलिंग इन द वाया इनहेरिटेंस. मतलब इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर कॉलिंग कैसे होता है वही है. देखो कंस्ट्रक्टर कॉलिंग ड्यूरिंग इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस के टाइम पे कंस्ट्रक्टर कॉलिंग कैसे हो सकता है. तो फर्स्ट एग्जांपल हमने देखा कि विदाउट पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर देखा. दोनों में सिंपल था एकदम. ये जो देखा हमने विथ पैरामीटर्स अगर आप कर रहे हो तो ऐसे सुपर कीवर्ड का आपको यूज होगा. ओके किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो बोल दो. मैं भी फॉन्ट को थोड़े छोटे कर देता हूँ. सर फॉन्ट हाँ ओके हो जाएगा अभी क्लियर. यस
देखो प्रैक्टिस करना है सब लोग, ऐसा नहीं है कि एक बार मैं ये कंसेप्ट करवा दूंगा, तो प्रैक्टिस करना साथ में, है ना। क्लियर हो गया? यस सर। ओके नेक्स्ट जाए अभी। तो ये फर्स्ट कंसेप्ट हमारा यहाँ पे क्लियर हुआ, जो मैंने डिसाइड किया था, कंस्ट्रक्टर कॉलिंग ड्यूरिंग इनहेरिटेंस। अभी जो नेक्स्ट कंसेप्ट जो मैंने डिसाइड किया हुआ है वो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट पैकेज वाले के लिए मुझे अलग से लेक्चर चाहिए, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। ओके वी विल सी द इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर, what does it mean, and what is this instance of operator. No double line, instance of operator. What is the use of these operators? So we will see the some of the basic points, because we have only 15 minutes. So just base देख लेते हैं, then next time the instance of operator के practicals भी करेंगे साथ साथ में, and thereafter package is a little bit vast, and I want to show some examples of practical, okay, during the lecture. So पैकेज कंसेप्ट तो आज नहीं होगा, बट इंस्टेंस ऑफ हम स्टार्ट कर देते हैं। what does it mean, instance of operator? It is nothing but just an operator. Okay, it is kind of operator. So instance of operator is used to test whether the object is an instance of the specified type. मतलब like इस टाइप का वो ऑब्जेक्ट है कि नहीं। लाइक चलो मैं यहाँ पे एग्जांपल की बात कर रहा हूँ कि सपोज मैंने बेस का b1 ऑब्जेक्ट बनाया, ओके b1 ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, b1 इक्वल टू न्यू बेस, ओके ऐसा मैंने सपोज मेन फंक्शन के अंदर ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया। तो मुझे क्या जानना है, ये b1 का टाइप बेस ही है या नहीं है। b1 का टाइप, इसे टाइप भी बोल सकते हैं आप, इट कैन बी कॉल्ड एज टाइप। ऑब्जेक्ट है ना, ये क्लास है, तो क्लास ऑब्जेक्ट का टाइप कौन सा है, दिस वन क्लास। तो b1 ऑब्जेक्ट का टाइप कौन सा है, बेस क्लास। ओके सो हियर इफ आई वांट टू नो दैट is b1 is the object of base class, or b1 is the type of base class, then I have to use instance of operator. Again, if integer a, suppose I have declared the variable integer a, then I want to know that if a is the integer type variable, if a is the integer type variable, then I can use instance of operator. Then I can use instance of operator. Is it clear now? To know the type of the variable. Okay, so to know, we cannot say that to know, but to verify the variable, okay, this one is this type of variable or not. To verify it, we have to use instance of variable. Okay, it is also known as the comparison operator, because it compares with instant types. Okay, and what does it return? It returns only true or false. if it is the like हमने जो कंडीशन रखी है उस हिसाब से है तो ट्रू आएगा, नहीं है तो फॉल्स आएगा। ओके एंड इफ किसी वेरिएबल में हम वो इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर रखते हैं तो वो वैल्यू देगा नल वैल्यू। ओके सो इट इज यूज्ड टू टेस्ट वेदर द ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ द स्पेसिफाइड टाइप। ओके क्लास, सब क्लास और इंटरफेस तो सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए। यहाँ पे मेरी भी मिस्टेक है, यहाँ पे मैंने तो जो लिखा था ना कि इंट ए के लिए आप नहीं रख सकते। इंट ए के लिए अगर आप इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर यूज करते हो ना, इंस्टेंस ऑफ, तो वो आउटपुट देगा नल। क्या आउटपुट देगा, नल। ओके द इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर ओनली यू कैन यूज विद द ऑब्जेक्ट्स के साथ ही आप यूज कर सकते हो। लाइक यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ बेस b1 इक्वल टू न्यू बेस। if I want to know that b1 is the data type of base, then I can use instance of operator and it will return true or false. If it is the object of the base class, then the false value returns, sorry, true value returns, and if the object is not of type base, then the false value returns. Is it clear now? Is it clear? क्लियर है अभी? Yes, sir. इंस्टेंस ऑफ ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल है तो थोड़ा बहुत ज्यादा आइडिया आ जाएगा। एक और चीज कि वो ट्रू और फॉल्स से रिटर्न करता है, वो भी याद रखो।
ओके देखो यहाँ पे एक सिंपल प्रोग्राम है, सिंपल वन करके एक क्लास है। ओके उसमें मेन मेथड है, सिंपल का ऑब्जेक्ट बनाया है एस एस इक्वल टू न्यू सिंपल वन। अब देखो मैं क्या जानना चाहता हूँ कि इफ एस इज द सिंपल वन ऑफ सिंपल वन का ऑब्जेक्ट है, तो ये रिटर्न इसका आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। आया समझ में? इज इट क्लियर नाउ? एस यस सर। Yes, sir. यहाँ पे सिंपल वन का Yes, ऑब्जेक्ट sir. बनाया एस। ओके तो एस इंस्टेंस ऑफ सिंपल वन, मतलब एस है वो सिंपल वन का ऑब्जेक्ट है ऐसा। तो अगर है सिंपल वन का ऑब्जेक्ट है, यस डेफिनेटली इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सिंपल वन, देन इट रिटर्न्स ट्रू। अगर वो नहीं है तो रिटर्न्स फॉल्स। इज इट क्लियर? Yes, sir. इसका पूरा प्रैक्टिकल करवाओ कि चलेगा? ये अपनी राय यूनिवर्सिटी का आया देखो, एड राय यूनिवर्सिटी ओपन 2020 अप्लाई नाउ। अच्छा है भैया, मार्केटिंग कर रहे हो। ओके चलो इसका क्या आउटपुट आएगा, चलो कौन बताएगा? मैं अभी आउटपुट शो नहीं करवा रहा हूँ, ये एग्जांपल देखो, इसमें कोई सोच सकता है कि क्या आउटपुट आएगा? जो देखो क्या किया, एक एनिमल लिया, उसमें कुछ डिफाइन नहीं किया हुआ है। ओके देन डॉग वन जो कि सब क्लास ऑफ एनिमल, ओके उसमें उसके अंदर ही मेन मेथड ले ली, देन उसका ऑब्जेक्ट बनाया, डॉग वन का ऑब्जेक्ट बनाया है डी, एंड अब पूछ रहे हैं कि डी इज द इंस्टेंस ऑफ एनिमल, तो क्या आएगा? ट्रू। ट्रू और फॉल्स? ये तो बाजू में लिखा है इसलिए बोल दिया ट्रू। नहीं सर। ओके क्यों ट्रू आएगा? चलो आंसर बता, चलो यश क्यों ट्रू सर आएगा? क्योंकि बेस क्लास है एनिमल, एनिमल बेस क्लास है और इंस्टेंस ऑफ एनिमल ही लिखा है। अगर डॉग लिखा होगा तो फॉल्स आएगा। तो गलत हो तुम। डॉग लिखा है तो डेफिनेटली डॉग लिखा है तो ट्रू ही आएगा ना। डॉग वन लिखा हुआ है, if dog one is यस। written over here then it must be true ना, because dog one का ही तो ऑब्जेक्ट बनाया डी, डी इज बट अगर सुपर क्लास सब क्लास का कंसेप्ट आता है तब जो डी या सब क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाते हो वो सब क्लास का भी ऑब्जेक्ट होता है, एंड एनी जो भी सुपर क्लास है उसका भी ऑब्जेक्ट आप बोल सकते हो, उसका भी टाइप है, आप ऐसा बोल सकते हो। मतलब डी डी दो टाइप कंसिस्ट करता है, डॉग वन का भी बोल सकते हैं हम उसको, एंड एनिमल का भी बोल सकते हैं। यहाँ पे डॉग वन लिखोगे तो ट्रू ही आएगा डेफिनेटली, बट यहाँ पे एनिमल लिखा हुआ है, एनिमल भी ट्रू आया क्यों? क्योंकि एनिमल सुपर क्लास है इसलिए। ओके इज इट क्लियर नाउ? यस सर। ओके तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। ओके तो जावा इंस्टेंस यहाँ पे देखो कुछ नहीं, एन ऑब्जेक्ट ऑफ सब क्लास टाइप इज आल्सो टाइप ऑफ पेरेंट क्लास, कितना याद रखना है देखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ सब क्लास टाइप, ओके तो लाइक डॉग वन का ऑब्जेक्ट बनाया आपने डी, ओके इज आल्सो टाइप ऑफ पेरेंट क्लास, वो पेरेंट क्लास का भी टाइप है तो एनिमल का भी है। ठीक है यहाँ पे देखो, इफ डॉग एक्सटेंड्स एनिमल देन ऑब्जेक्ट ऑफ डॉग कैन बी रिफर्ड बाय अदर डॉग और एनिमल क्लास। इज इट क्लियर नाउ? गाय नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट Yes, sir. यहाँ पे चलो ये एग्जांपल दिया हुआ है, ओके इसका क्या आएगा? चलो सर फॉल्स। फॉल्स, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है तो फॉल्स। ओके बट सर वो इक्वल टू नल है। हाँ डी इक्वल टू यहाँ पे क्या लिया हुआ है? नल, इसलिए ओके इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर ऐसे वेरिएबल में आप लेते हो कि जिसकी नल वैल्यू है देन इट रिटर्न्स फॉल्स। ओके तो यहाँ पे डॉग टू डी इक्वल टू नल दिया हुआ है, दैट्स व्हाई यहाँ पे आंसर क्या आएगा? फॉल्स। क्लियर? जाए नेक्स्ट। ओके ये अभी डाउन कास्टिंग एंड ये थिंग है तो वो अभी हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। Okay, downcasting, already downcasting and upcasting, we have seen both the concept in polymorphism and dynamic binding. So just घर से थोड़ा बहुत होमवर्क करके आना, रीड करके आना, what is downcasting, what is upcasting.
Okay, then and then you can understand all these concepts like downcasting with Java instance of that. Like, okay, now only 2 minutes left, so I'm ending the session if there is no doubt. સર આ લેક્ચરની લિંક જોઈએ છે એટલે આ શામાંથી કરાવું છો ને ખાલી લખજો ને ઇન્સ્ટન્સ ઓફ જાવા ટી પોઈન્ટ અને ઇનહેરિટન્સ વાળું છે ગ્રીક્સ ફોર ગ્રીક્સ માંથી લીધું છે સર આ મતલબ તમારા લેક્ચર ની સર કેમ સર એટલે પેલો આગળનો રેકોર્ડિંગ જોઈએ છે હા સર આ લેક્ચર ની અચ્છા ચાલ હું ટ્રાય કરું બરાબર રેકોર્ડિંગ થઈ જાય એટલે ઓકે સર એટલે શું ડાઉટ હતો કે ડાઉટ છે એટલા માટે કે શું છે સર પેલો પહેલો પ્રોગ્રામ કર્યો ને બીજો કર્યો ને એટલે સર થોડોક પરફોર્મ કરવો છે ને સમજીને કરવો છે ઓકે ઓકે હું અપલોડ કરી દઈશ યુટ્यूबમાં લાસ્ટ ટાइम કરી थी ना ओके चलो तो फिर मैं अभी एंड करूँ सेशन एंड 1:30 को वीबीपी के लिए यस नील कहाँ है नील आ जाना वीबीपी के लिए वो लैपटॉप लेके साथ में है ना तो मैं अभी एंड कर रहा हूँ सेशन Okay, sir. ओके बाय Bye, sir. Have a good day. गुड डे बाय